Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you the communicable diseases part 2. In previous few video lecture, your concept regarding health diseases is clear. And also the types of diseases, as you all know, on the basis of duration, may be the chronic disease or maybe the acute disease. The chronic disease are those kinds of diseases that has severe factors and severe symptoms but for long duration. And acute diseases that has the symptoms and factors for short duration. On the basis of mode of transmission, the diseases are having two types: the non-communicable and communicable diseases. Communicable diseases like blood pressure, diabetes and arthritis will never spread from one person to another person. It means some diseases do not spread even when the touch, share with the foods, water, etc. The disease cannot spread from one person to another person. That disease is known as non-communicable disease or non-infectious diseases. The second types of diseases is the communicable diseases or infectious diseases. Disease that may spread from one person to another person by the physical contact or by sharing the food and water is known as communicable diseases, or sometimes it is known as infectious disease. Infectious diseases occurs through the different kinds of pathogens. Pathogens may be virus, bacteria, protozoans, fungi, helminths, nematode, etc. All about the viral diseases is over in previous video lecture. The common virus diseases are AIDS, the polio, pox, and the ongoing COVID-19, that is the coronavirus, is the common virus diseases. That is over in previous video lecture. In this video lecture, I will describe you the communicable diseases from bacteria, protozoan, etc. So first of all, the bacterial communicable disease. Bacterial communicable disease. Why the point second? Because the viral communicable disease is over in previous video lecture. The video become too longer than the second part is required. Bacterial diseases, bacterial communicable diseases are those kinds of diseases that is spread through the bacteria. Keep in mind, it is spread through bacteria. So as per name, bacterial diseases are those kinds of diseases that is spread through the different kinds of bacteria. An example: टाइफाइड, ए करके लिखते हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटनस, so many diseases are there in our surrounding that may spread through the bacteria. Bacteria typhoid spread from one person to another person through the food. That is टाइफाइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम लिख सकते हो उसको, साल्मोनेला टाइफी. और न्यूमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, COCUS, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. तो इन दोनों के बारे में भी डिटेल पढ़ना है, ठीक है. टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एंड न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया are two different kinds of major disease. And other kinds of disease like the tetanus, tuberculosis, TB लिख सकते हैं, TB फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम से ये होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा. टाइफाइड कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है? बाय शेयरिंग द फूड्स एंड वाटर. दैट इज इंफेक्टियस फूड्स एंड वाटर मे एबल टू ट्रांसफर द टाइफाइड. क्लियर है? सिम्टम्स क्या है? बुखार आता है और एब्डोमिनल पेन होता है.
Abdominal pain, hepatitis loss and fever are some common symptoms for the typhoid disease. ठीक है. Causative agents Salmonella typhi, that is the bacteria. Symptoms the fever and abdominal pain and mode of transmission by the sharing food and water. So the sharing food and water is precautionable, that is there is a need of precaution for sharing food and water. If the person is infected with typhoid, it may possible to transfer the typhoid bacteria from the infected person to non-infected person. ठीक है. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae, it is airborne disease. By the sneezing or coughing, each time when you sneeze, then there are a little droplets released out from your nose. That little droplets may consist millions of such bacteria or millions of other infectious virus that actually infect to the respiratory tract. In case of pneumonia, listen, in case of pneumonia, the lungs get infected and it is most common in low immunity level of person. Low immunity level में कौन कौन आता है? छोटे बच्चे और बुजुर्ग. इन दोनों लोगों को निमोनिया के केसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. इनकी इम्यूनिटी लो होती है, उसको निमोनिया के खतरे ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्ट कौन सा है? कौन सा पार्ट इसमें ज्यादा नुकसान पहुंचता है? लंग्स. इसको आप लिख लीजिए कॉपी में. कौन सा पार्ट है? लंग्स. ठीक है. द इफेक्टेड पार्ट होता है लंग्स. लंग्स की एल्वियोली में क्या होता है? डिग्रेडेड पार्ट होता है. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखने हैं, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है. Tuberculosis, T. It is also the airborne diseases caused by the Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is the type of bacteria that infect to the lungs also, but having a dry cough or sometime even when the blood clotting released out from the cough area. That is very important to understand. Keep in mind. And the infected person may spread the bacteria through the cough, through the different kinds of blood clots that is spread out and released out from the body. ठीक है. तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस ओवर हो गए. अब आते हैं प्रोटोजोअन डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे. प्रोटोजोअन डिजीजेस. थर्ड, प्रोटोजोअन डिजीजेस. प्रोटोजोआ क्या होता है भाई? आपने पढ़ा होगा 9th में बायोडाइवर्सिटी. 9th तो चल ही रहा है, बायोडाइवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन अमीबा का नाम सुना होगा. अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा, डायग्राम वगैरह 8th वगैरह में बनाया होगा. अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना जिस फैमिली से, जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट विल बी द प्रोटोजोआ. क्लियर है. फर्स्ट एनिमल्स है, प्रिमिटिव है, यूकैरियोटिक एनिमल है, सिंगल सेल्स है, यूनिसेलुलर है, उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं. ठीक. तो ये अमीबा पैरामीशियम की कैटेगरी में ही ये प्रोटोजोआ डिजीजेस आते हैं. और इसमें बेसिक जो हमारा है वो क्या है? सबसे टॉप पे है हमारा मलेरिया. मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, इसको बोलते हैं ट्राइपैनोमियासिस. ट्राइपैनोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस. थर्ड, काला आजार. फोर्थ, अमीबिक डिसेंट्री, जिसको अमीबियासिस भी बोलते हैं. अमीबियासिस, इसको और क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री. अमीबिक डिसेंट्री. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन डिजीजेज हैं, जैसे जिंजीवाइटिस, ज्यादातर मसूड़ों में प्रॉब्लम्स होती है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में तमाम तरह के डिजीज आते हैं. और ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से. मलेरिया की मैं बात करता हूं. मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? नोट कर लीजिए कॉपी में. प्लाज्मोडियम. मलेरिया इन बॉडी काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ. कीप इन माइंड दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द mosquito bite. And which kinds of mosquito? The female Anopheles mosquito. The female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito, if bite to the infected person,
then captures the pathogens of Plasmodium and it next time it bite to the other person, then first of all release the saliva and through the saliva it release the pathogens. यानी एक पर्सन को काटा तो उससे पैथोजेंस को पिक कर लिया, नेक्स्ट टाइम काटने से पहले मॉस्किटो अपना सलाइवा रिलीज करता है। क्यों? ब्लड को घोलने के लिए, डाइल्यूट करके पतला करने के लिए। ब्लड गाढ़ा होता है तो अपना सलाइवा रिलीज करता है, तो उस सलाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम इंटर कर जाता है बॉडी में और फिर मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स है? बेसिक शिवरिंग, बुखार के साथ कपकपी, कांपना, ये हो जाएगा आपका मलेरिया। बुखार के साथ पेट दर्द कर रहा है तो टाइफाइड, और बुखार के साथ अगर कांप रहे हैं आदमी तो शिवरिंग यानी कि मलेरिया। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव एजेंट्स पता चल गए कौन है? प्लाज्मोडियम। और वेक्टर कौन है? वो है एनाफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसमें मलेरिया भी है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोमियासिस, ये सोने में प्रॉब्लम होती है, इंसान को नींद नहीं आती है, और ये ट्राइपैनोसोमा एक लिख देना यहाँ पे, ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा क्या करता है? इन्फेक्ट करता है बॉडी में, और क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है और एकदम से रट लेना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, काला आजार। इसमें बुखार वगैरह होता है, बुखार होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्रोलिफरेशन होते हैं, सेलुलर प्रोलिफरेशन होते हैं, बुखार होता है। ठीक है, पेन होते हैं बॉडी में जगह जगह। और ये क्यों होता है? ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है। सैंड फ्लाई तो वेक्टर है। काला आजार का जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई, वो काला आजार को कि पैथोजेंस को कैरी करके ले जाता है। पैथोजेंस का नाम लिख लीजिए यहाँ पे, लिशमैनिया। लिशमैनिया, लिशमैनिया एक प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से काला आजार होता है। ठीक है, लिशमैनिया जिसकी वजह से काला आजार होता है। ठीक है, काला आजार लिशमैनिया की वजह से। और लिशमैनिया को कौन एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है? सैंड फ्लाई, एक कॉमन सा इंसेक्ट है जो क्या करता है? इस लिशमैनिया को इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाता है। ये आपको दिमाग बनाना चाहिए और इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, और ये सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है फ्लीबोटॉमस। फ्लीबोटॉमस, फ्लीबोटॉमस क्या है? लिशमैनिया का कैरियर, लिशमैनिया को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, अमीबियासिस, अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। पेट में दर्द होता है, बार बार वॉमिटिंग होता है, बार बार जो है लूज मोशंस होते हैं, और पेट में दर्द तो कॉमन है। हेपेटाइटिस लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक अमीबा है, अमीबा की एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं एंट अमीबा। यहां पे लिख दे रहा हूं, एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन, इंटेस्टाइन में होल करता है, उसमें छोटे छोटे होल कर देता है। और प्रॉब्लम्स क्या होती है कि डिसेंट्री के साथ कुछ स्टूल्स वगैरह निकलते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी निकलते हैं और बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक पैथोजन है, और ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में हाउस फ्लाई के थ्रू जाता है। ये आप दिमाग बैठा लीजिए, ये किसके थ्रू जाता है? हाउस फ्लाई इसका कैरियर है। हाउस फ्लाई इसको लेकर के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये कुछ कॉमन से प्रोटोजोआ डिजीजेस है। इसके बाद बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं फंगल डिजीजेस में, जिसमें रिंग वर्म्स वगैरह हैं। ठीक है, हेलमिंथ निमेटोड, निमेटोड एक कीड़ा होता है, उससे फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया। और फाइलेरिया का जो साइंटिफिक, फाइलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट से नोट कर लीजिए कॉपी में, ये होता है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। इससे क्या होता है? फाइलेरिया होता है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ प्रोटोजोअन है, बैक्टीरियल है और वायरल है आपके। ठीक है, तो वायरल खत्म हो गया था, प्रोटोजोअन और बैक्टीरियल इसी वीडियो लेक्चर में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो फाइलेरिया, जिसको फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, और ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, और ये एक तरह का कीड़ा है, निमेटोड है। ठीक, निमेटोड। और इससे
और जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसमें स्वेलिंग आती है और वो परमानेंट हो जाता है, यानी कि वो कभी ठीक नहीं होता। तो ये आपका कुछ डिजीजेस है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द डिफरेंट वे बाय विच द डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज द फूड, वाटर, एयर और एनिमल्स, दैट इज category of diseases that may transfer from one person to another person on the basis of their epidemiology, on the basis of their mode of transmission. Thank you.